चलिए अब जो चैप्टर पढ़ा है उसका एक बार फुल रिवीजन कर लेते हैं हम लोग। जो यहाँ से हमने चैप्टर पढ़ा है इसका अपन लोग फुल रिवीजन एक बार करेंगे, जो जो चीजें सीखी हैं इसमें हम लोग। चलिए श्रुति पहला क्वेश्चन पढ़िए जल्दी से। What are semiconductors? Write down name of any two semiconductors. The substances which have electrical conductivity between conductors and insulators are called semiconductors. Example, germanium, silicon. एग्जाम्पल जो है वो है जर्मेनियम और सिलिकॉन। पढ़िए हाउ डज। एक मिनट। Yes, sir. How does the conductivity of semiconductors affected on heating the semiconductors? Answer. When a semiconductor is heated, then the covalent bond gets broken and valence electrons becomes free. With increase in temperature, the number of free electrons increases. Hence, the conductivity of semiconductor increases. बिल्कुल सही बात है। जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो फ्री इलेक्ट्रॉन जो होंगे और ज्यादा रिलीज हो जाएंगे, इस वजह से सेमीकंडक्टर की जो कंडक्टिविटी होगी वो बढ़ेगी। चलिए रीना तीसरा क्वेश्चन पढ़िए। चूज द कंडक्टर इंसुलेटर। Choose the conductor, insulator, and semiconductors in the following: germanium, tungsten, air, silver, silicon, carbon. Answer: conductor, tungsten, silver; insulator, air; semiconductor, germanium, carbon, silicon. फोर्थ क्वेश्चन। Write difference between the charge occurs in the resistivity of metals and intrinsic semiconductor with temperature. With increase in the temperature, the resistivity of metals increases. With that of intrinsic semiconductor decreases. हाँ सही बात है भैया। टेम्परेचर के साथ जो होती है वो रजिस्टिविटी बढ़ा करती है मेटल्स की, कंडक्टर की, मगर टेम्परेचर बढ़ाने से सेमीकंडक्टर की रजिस्टिविटी डिक्रीज होती है। इस वजह से टेम्परेचर बढ़ाने पर सेमीकंडक्टर का रेजिस्टेंस भी डिक्रीज होता है। अगला क्वेश्चन, ड्रॉ द सिंबल ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। वेरी सिंपल बच्चों, ये पीएन जंक्शन डायोड का सिंबल आप बड़े आसानी से ड्रॉ कर सकते हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो है ही नहीं। हाँ पढ़िए एरिना। एक्सप्लेन पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर इन द टर्म्स ऑफ एनर्जी बैंड। Explain p-type semiconductors in terms of energy band. When a trivalent impurity such as boron, aluminium, etc., is introduced, doped in a pure germanium crystal, then a p-type semiconductor is formed. In a p-type semiconductor, each acceptor impurity atom possesses a hole. This hole is fulfilled by an electron of nearest germanium band. To remove the electron from covalent band and to bring it to the hole, very small amount of energy, about 0.01 to 0.05 electron volt, is required. Hence, the acceptor energy level is slightly above the top of valence band. At room temperature, the electrons of valence band get excited and reach to the acceptor level. Therefore, same number of holes are created in valence band. Thus, in p-type semiconductor, the number of holes in valence band is much greater than the number of electron in conduction band. Yes, therefore same number of holes are created in valence band. Thus, in p-type of semiconductor, the number of holes in valence band are much greater than the numbers of electron in conduction band. और मैंने आपको बताया था कि वैलेंस बैंड में जो होल्स का एक्सेप्टर लेवल होता है, एक्सेप्टर एनर्जी लेवल जो होता है पी टाइप सेमीकंडक्टर का, वो थोड़ा हाई हुआ करता है, क्योंकि होल जो होते हैं कंपैरेटिवली हाई एनर्जी स्पॉट के जैसे एक्ट किया करते हैं। तो इस तरीके से जो पहले एनर्जी गैप ये पूरा का पूरा बन रहा था, नीचे तक का बन रहा था, अब वो एनर्जी गैप थोड़ा कम बनेगा।
कंडक्शन बैंड तक पहुंचने का इलेक्ट्रॉन का जो एनर्जी गैप होगा वो थोड़ा कम बनेगा। तो जो इलेक्ट्रॉन्स आएंगे वैलेंस बैंड से होल्स को ऑक्यूपाई करेंगे वो इजीली पहुंच जाएंगे फिर कंडक्शन बैंड में। चलिए पढ़िए एक्सप्लेन एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। बट उसके पहले मैं बता देता हूं कि एन टाइप सेमीकंडक्टर में जो डोनर लेवल बनता है, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी होती है वो कंडक्शन बैंड के थोड़ी सी नीचे होती है और कंडक्शन बैंड के इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ये ऊपर पहुंच जाते हैं। याद रखिएगा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कूदते हैं और ऊपर कौन जाता है, यहाँ पे होल कूदते हैं। तो यहाँ पे होल्स रहते हैं और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन हुआ करते हैं। अब पढ़िए इसको, explain n type of semiconductor in terms of energy band. When Explain N-type semiconductor in terms of energy band. When a pentavalent impurity such as antimony is added to germanium crystal, then each atom of germanium has an extra electron. The energy of these electrons is less than the least energy of conduction band and is greater than the highest energy of valence band. In N-type semiconductor, very small amount of energy is required to obtain a free electron from donor impurity, about 0.1 electron volt. Hence, the donor energy level is near to the bottom of conduction band, so these electrons can get thermal energy easily and can go to conduction band. Thus, यहाँ का जो गैप होता है वो 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का हुआ करता है। तो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन जो डोनर लेवल में होते हैं बड़े हाईली एक्साइटेड स्टेट में होते हैं, बस थोड़ा सा पुश की जरूरत होती है, वहां पर पहुंच जाते हैं। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी जो होती है बहुत जबरदस्त हुआ करती है, इवन पी टाइप से भी ज्यादा हुआ करती है। चलिए 10 नाउ इन द इलेक्ट्रॉन्स। Thus, now the electrons which are obtained by donor impurities and due to thermal agitation becomes more in number in the conduction band. Hence, in the N-type semiconductor, the electrons are majority charge carrier and holes are minority charge carriers. Yes, next question. What do you understand by N-type and P-type semiconductors? Give differences between them or differentiate between the P-type and N-type semiconductor. Answer: N-type. When pure germanium is introduced by small amount of pentavalent atoms as antimony, arsenic, etc., the N-type semiconductors are formed. P-type. When pure germanium is introduced by a small amount of trivalent atoms as indium, boron, etc., then P-type semiconductors are formed. Difference between N-type and P-type semiconductor. N-type. N-type of semiconductor are formed by the impurities of pentavalent elements. P-type. P-type of semiconductors are formed by the impurities of trivalent elements. Electrons are the charge carrier. Holes are the charge carrier. Number of electrons in conduction band is greater than the number of holes in valence band. Number of holes in valence band is greater than the number of electrons in conduction band. Fermi level is towards conduction band. Fermi level is towards valence band. हाँ, ये काम की चीज है। इसमें फर्मी लेवल जो होता है वो कंडक्शन बैंड की तरफ होता है। क्या होता है फर्मी लेवल? ये वाला जो लेवल होता है, ये जो अभी इसमें तो देखा था एन टाइप में ऊपर होता है, ये डोनर लेवल, मतलब इलेक्ट्रॉन जिस स्टेट में रहा करते थे टेम्परेरीली उसको बोलते हैं फर्मी लेवल। इसका जो होता है कंडक्शन बैंड की तरफ होता है और इसका फर्मी लेवल जो होता है वो वैलेंस बैंड की तरफ होता है। किसका? पी टाइप का। और एन टाइप का कंडक्शन बैंड की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Write difference among conductors, insulators, and semiconductor. Difference among conductors, insulator, and semiconductor. Conductors. In it, the current can be flown easily. Insulators. In it, current conduction is not possible. Semiconductor. In it, the current is less as compared to conductors. With increase in temperature, their resistivity increases. Their temperature coefficient of resistance is positive. There is no effect on resistivity of insulators. Their temperature coefficient of resistance is negligible. With increasing temperature of semiconductor, their resistance decreases. Hence, their temperature coefficient of resistance is negative. In it, electrons are charge carrier. They have no charge carriers. They have two types of charge carriers, electrons and holes. Impurity decreases the conductivity of conductors. Impurity does not
does not charge the change वो the चेंज है, conductivity. हाँ चेंज द Impurity increases their conductivity. In it, energy gap between valence band and conduction band is either zero or very small. In it, energy gap is much large, that is, Eg is greater than 3 electron volt. In it, energy gap is small as compared to insulators and slightly greater as compared to conductors. Sir, example, metals, human body, etc., earth, etc. Example, glass, wood, plastic, etc. Example, silicon, germanium, एग्जैक्टली etc. चलिए प्योर है. नेक्स्ट डिफरेंस बिटवीन इंट्रेंसिक यानी कि प्योर सेमीकंडक्टर एंड एक्सट्रेंसिक यानी कि इम्प्योर सेमीकंडक्टर. पढ़िए. राइट. In Write differences between intrinsic pure semiconductors and extrinsic impure semiconductors. Difference between intrinsic pure semiconductor and extrinsic impure semiconductor. Intrinsic semiconductor. The pure semiconductors are called intrinsic semiconductor. Extrinsic semiconductor. When a trivalent or pentavalent impurity is added in pure semiconductor, then an extrinsic semiconductor is formed. हाँ Their यहाँ पे ये electrical conductance is very low. एग्जैक्टली. इनका इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस Their लो होता है. electrical conductance is high. हाँ इनका हाई होता है क्योंकि अच्छे कंडक्टिव होते हैं. नेक्स्ट. Their electrical conductance depends upon the temperature. Their electrical conductance depends upon the temperature as well as on the concentration of mixed impurity. In it, density of electrons and holes are same. In n-type semiconductor, the electron density is greater than hole density, while in p-type semiconductors, the hole density is greater than free electron density. यस, ये सारी बातें क्लियर हैं श्रुति. सब कुछ पढ़ाया जा चुका है. एन टाइप में बेटा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है, Yes, होल कम sir. होते हैं, और पी टाइप में होल ज्यादा होते हैं, इलेक्ट्रॉन कम होते हैं. सब कुछ वही है. क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? चलिए पढ़ो Yes, एरिया. sir. Clear. एक्सप्लेन द. Explain the following terms with reference to p-n junction. Uncovered charge, depletion layer, potential barrier. Uncovered charge. The positive immobile ions present on the N region and negative immobile ions present in P region near the junction are called uncovered charge. हाँ Depletion layer. तो जंक्शन में बच्चों जो मैं आपको बना करके दिखाता रहा हूँ, पी और एन जंक्शन में जो चार्जेस बना के दिखाता रहा हूँ, एक मिनट यहाँ है कि नहीं है? यहाँ नहीं है आपको, बट मैंने जब स्टार्ट किया था पी एन जंक्शन तब मैंने बताया था कि डिफ्लेक्शन लेयर के एक दाएं तरफ और बाएं तरफ तो मोबाइल चार्ज बना करते रहे हैं, बट बाकी की जगह कौन से चार्ज बना करते रहे? इमोबाइल आयन. याद है? उन्हीं को बोलते हैं अनकवर्ड चार्ज. अब पढ़िए Yes, sir. हाँ Yes, अब पढ़िए sir. डिप्लेशन लेयर. Depletion layer. The layer on either side of p-n junction which does not contain any charge carrier, neither positive charge carrier nor negative charge carrier, is called depletion layer. पोटेंशियल बैरियर. Potential barrier. The potential difference developed across the depletion layer is called the potential barrier. यस, तो पोटेंशियल उसके डिप्लेशन लेयर के अक्रॉस पॉजिटिव और नेगेटिव की बैटरी जो थी वो कनेक्ट हो जाती थी, चालू हो जाती थी, उसको अपन बोलते थे पोटेंशियल बैरियर. एक बैटरी बन जाया करती थी. चलिए अब अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है. वर्किंग ऑफ पीएन जंक्शन इन फॉरवर्ड बाइस. तो मैंने तो ऐसे बहुत डिटेल में बताई है, बट फॉरवर्ड बाइस में क्या होता है कि आपके पास एक पीएन जंक्शन है, पी फॉर पॉजिटिव एंड एन फॉर नेगेटिव. तो P को पॉजिटिव से और N को नेगेटिव में लगाते थे. तो आपको याद होगा कि मेन इलेक्ट्रिक फील्ड पीएन जंक्शन के बैरियर इलेक्ट्रिक फील्ड का जस्ट अपोजिट होता है. धीरे 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 करंट बढ़ाते, वोल्टेज बढ़ाते हो, एक समय आता है कि वोल्टेज जो होता है इसके बैक वोल्टेज से, ब्रेकिंग वोल्टेज से, बैरियर वोल्टेज से ज्यादा हो जाएगा और करंट एकदम से बढ़ती चली जाएगी इन मिली एम्पियर. तो इसको बोलते हैं फॉरवर्ड बाइस. चलिए पढ़िए एरिना, व्हाट इज फॉरवर्ड बाइस? When external voltage
When external voltage applied to the junction is in such a direction that it cancels the potential barrier, thus permitting the current flow, it is called forward biasing. The positive terminal of the EMF source is connected to P type and negative terminal to N type. Now, in this position, the holes are repelled and move towards the junction, and so with the electrons also move towards the junction. For each electron hole combination, a covalent bond near the positive terminal of the battery is broken and liberated electron enters the positive terminal of the battery. This action creates a new hole, which moves towards junction by the effect of applied EMF. At the other end, the electrons enter N region and move towards the junction. Thus, current flows through the junction. This applied voltage is called forward bias. As the voltage is increased across P and N, the current strength also increases. यस, तो करंट इसी तरीके से इंक्रीज करती रहेगी। ओके, अब रिवर्स बाइसिंग पढ़ते हैं बच्चों। चलिए क्वेश्चन पढ़ दीजिए। वर्किंग ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। Working of PN junction diode in reverse bias. When positive terminal of battery is connected to the N end of PN junction and negative terminal is connected to P end, circuit is called reverse हाँ biased. बच्चों, In this condition, ये डायग्राम गलत बना हुआ है। पी को नेगेटिव से जोड़ना था और एन को पॉजिटिव से जोड़ना था, तो ये डायग्राम गलत बना हुआ है। इसका उल्टा डायग्राम बनेगा, बैटरी को उल्टा कर दो। चल पढ़ो। in this condition, holes of P region move towards negative of the battery and electrons of N region towards positive of the battery. In this way, the diode possesses neither holes nor electrons. As a result, current flow is very low, about Yes. zero. तो ये बहुत ही कम अमाउंट की करंट फ्लो हुआ करती है। देखिए इतने से रीजन में बहुत ही छोटी सी करंट फ्लो होती है। इसको बोलते हैं बच्चों हम लोग रिवर्स सैचुरेशन करंट। इस करंट को बोलते हैं रिवर्स सैचुरेशन करंट। आप वोल्टेज बढ़ा रहे हैं बट करंट नहीं बढ़ रही है। बट एक समय आता है कि आप वोल्टेज को इसकी सहन शक्ति से ज्यादा बढ़ा देते हैं, तो इसके लैटिस के इलेक्ट्रॉन फूट जाते हैं, लैटिस के इलेक्ट्रॉन निकल करके आ जाते हैं, तो बहुत जोरों की करंट बढ़ जाती है। इस घटना को बोलते हैं जेनर ब्रेकडाउन। पढ़िए। Very low current flows through the diode as shown in the figure of the order of microampere because due to thermal excitation, some of the hole and electron pairs are being produced in diode. These pairs move through the junction, cause flow of current of very less amount. When reversed voltage is increased, current in the circuit remains constant, approx. But at high value breakdown occurs as a result, electron hole pairs are produced in large amount and current increases abruptly, called Zener breakdown. तो ये ब्रेकडाउन जो होता है वो जेनर ब्रेकडाउन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज रेक्टिफिकेशन? What is rectification? Explain half-wave rectification by diode on the basis of following points. First, label diagram of circuit. Second, working. Or describe the use of PN junction diode as half-wave rectifier under the following heads. First, labeled circuit diagram. Second, working. Third, graph of time variation of input and output potential. Answer. Rectification. The phenomenon of conversion of AC to DC is known as rectification. Label diagram. EC input AC voltage, T step up transformer, PN junction diode, R load. Working. When an AC volt ये देखिए डायग्राम है अपने पास। ये अपने पास इनपुट ट्रांसफार्मर है, इसकी इनपुट प्राइमरी वाइंडिंग है। ओके, ये ट्रांसफार्मर है, ये इसकी सेकेंडरी वाइंडिंग से कनेक्ट है। इसका एक टर्मिनल ए है, दूसरा टर्मिनल बी है। ऊपर वाले टर्मिनल में आपने डायोड लगा दिया है। तो जब ऊपर वाला टर्मिनल प्लस होगा तो नीचे वाला माइनस हो जाएगा, और जब ऊपर वाला माइनस हो जाएगा तो नीचे वाला प्लस हो जाएगा। जिस समय ऊपर वाला प्लस होगा तो पी से प्लस मतलब फॉरवर्ड बाइस, तो डायोड काम करेगा, और जिस समय ऊपर वाला माइनस हो जाएगा तो डायोड काम नहीं करेगा। पढ़िए लेवल डायग्राम। वर्किंग पढ़िए। working. When an AC voltage is applied to the primary coil of transformer, then an AC voltage is induced in the secondary coil of transformer.
Let in half cycle A is at positive potential with respect to that of B. Then PN junction diode is in forward biased. Thus, the current flows through it, and conventional current flows through R from C to D. हाँ, तो जैसे ये कंडक्ट करेगा तो करंट फ्लो हो जाएगी और करंट यहाँ से लेफ्ट टू राइट आते हुए सी से लेके डी में जाएगी। जैसे ही करंट जाएगी तो फॉर्म रेजिस्टेंस कितना है आर, करंट जाएगी आई, तो आई इंटू आर एक डीसी वोल्टेज अप्लाई हो जाएगा। तो फर्स्ट साइकिल में वोल्टेज ड्रॉप होगा, बट सेकेंड साइकिल में वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा क्योंकि वो रिवर्स बाइस में है। फिर फॉरवर्ड में फिर वोल्टेज ड्रॉप होगा। तो ये था इनपुट वोल्टेज का वेव ग्राफ और ये है आउटपुट वोल्टेज का वेव ग्राफ। ठीक है, चलिए पढ़िए। In the next half cycle, A is at negative potential with respect to B. The junction diode is in reverse biased and no current flows through R. The same phenomenon is repeated in the next cycle. Therefore, only half cycle of the input AC wave is converted into DC. The process is called half wave rectification. Okay, next question. What is rectification? Drawing the electrical circuit show a PN diode can be used as full wave rectifier. Describe the use of PN junction diode as a full wave rectifier under the following heads. First, labeled circuit diagram. Second, working. Third, waveform of output signals. Or, what is rectifier? Draw circuit diagram to explain the use of PN junction diode as full wave rectifier. The process of converting the alternating current into direct current is called rectification, and the circuit used for the purpose of rectification is called rectifier circuit. Label diagram. T. Step up transformer. D1, D2 diodes are load resistance. Working function. When AC voltage is applied on primary coil of step-up transformer T, AC voltage induces in secondary coils. In first half cycle, A is at positive and B is at negative potential with respect to E. Therefore, diode D1 becomes forward biased and current flows in load resistance R from C to D. Yes. This time, देखिए पहले इस हाफ साइकिल में क्या होता है, जिस समय ये प्लस में रहता है ये माइनस में रहता है, तो ई वाला जीरो में रहेगा, तो ये वाला जो सर्किट होगा ये फॉरवर्ड बाइस में हो जाएगा, करंट फ्लो होगी और जो वोल्टेज जाएगा ड्रॉप होगा वो सी टू डी डायरेक्शन में करंट जाएगी तो वोल्टेज ड्रॉप होगा, ये प्लस और ये डी वाला माइनस। सेकेंड हाफ साइकिल में बी हो जाएगा प्लस में और ए हो जाएगा माइनस में, तो ये बन जाएगा फॉरवर्ड बाइस में। तो करंट यू चलेगी पी से लेके एन और अगेन उसी डायरेक्शन में वोल्टेज आपका ड्रॉप होगा। तो देखिए for this wave graph voltage is this one output voltage, and this wave graph also the output voltage in the same direction as previous one, तो सेम डायरेक्शन में वोल्टेज ड्रॉप होगा। पढ़िए। Therefore, diode D1 becomes forward biased and current flows in load resistance R from C to D. This time, point B is at lower potential relative to E. Therefore, D2 is at reverse biased. In second half cycle, A is at negative and B is at positive potential relative to E. D1 gets reversed biased and stops working, where D2 is at forward bias and allows current to flow from C to D. In this way, in both the half cycles, current flows through the load resistance and diode behaves as full wave rectifier. यस, तो डायोड जो होगा फुल वेव रेक्टिफायर के जैसे काम करेगा। डायग्राम देख लीजिए मेनली, अगर डायग्राम आपको याद है तो पूरा का पूरा लिखते बन जाएगा, कुछ भी नया नहीं है। ओके, यस, चलिए न्यूमेरिकल नंबर 1। चलिए क्वेश्चन न्यूमेरिकल आप लोग लिख सकते हैं कॉपी में, पढ़ो एरिना न्यूमेरिकल नंबर 1। In a PN junction, width of depletion layer is 10 to the power minus 6 meter and potential barrier is 0.7 volt. Calculate the barrier electric field. वेरी सिंपल भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का तरीका E इज इक्वल टू V बाई एल। तो वोल्टेज लग रहा है बैरियर का 0.7 और जो उसकी विड्थ दी गई है 10 की पावर माइनस 6, डिवाइड कर दो बच्चों, कॉपी में नोट कर लो ये न्यूमेरिकल छोटा सा है ना। तो आंसर कितना आएगा बच्चों अपने पास 7 इंटू 10 की पावर 5 वोल्ट पर मीटर। जो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर दौड़ेगा वो कितने का होगा 7 इंटू 10 की पावर 5 वोल्ट पर मीटर का। ठीक है, Yes, sir. Yes, sir. अगला क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 2।
In a PN junction diode, if the potential is changed by 0.12 volt, then current changes by 1.5 milliampere. Find out dynamic resistance of diodes. हाँ, तो यहाँ पे डायनेमिक रेजिस्टेंस की बात की गई है, क्योंकि भैया फिक्स रेजिस्टेंस होता नहीं है, ओमिक प्रॉपर्टी को तो फॉलो करता नहीं है। ओमिक कंडक्टर का फिक्स रेजिस्टेंस होता है, तो यहाँ पर डायनेमिक रेजिस्टेंस होता है। ओम्स लॉ में क्या होता था, R इक्वल टू वी अपॉन आई। यहाँ पे क्या होगा, डायनेमिक रेजिस्टेंस है डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आई। लिख लो, डायोड का रेजिस्टेंस डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आई। दो पोजीशन के बीच में आप निकाल सकते हो, हर जगह रेजिस्टेंस अलग अलग आएगा, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आई। तो डेल्टा वी की वैल्यू 0.12 और डेल्टा आई की वैल्यू गिवन है बच्चों, पुट कर दो, आ गया आपका आंसर 0.12 अपॉन 1.5 इंटू 10 की पावर 3 इक्वल्स टू 80 ओम। लिख लिया, बन गया, समझ में आ गया कि नहीं आया बताओ। Yes, sir. Yes, sir. Yes, आ गया. चलो ठीक है, छोटी सी और क्वेश्चन एक्सरसाइज बची हुई है, चलिए वो कर लेते हैं। हाँ, राइट द आंसर इन वन वर्ड वन सेंटेंस। पहला क्वेश्चन पढ़ो। Write the answer in one word or sentence. How does the energy gap in the intrinsic semiconductor varies on introducing a pentavalent impurity in it? बताइए, एनर्जी गैप के क्या हाल होते हैं जब आप पेंटावेलेंट इंप्योरिटीज डालते हो? तो एनर्जी गैप बढ़ जाता है कि घट जाता है? बोलो भाई, अगर पेंटावेलेंट इंप्योरिटीज मिलाओगे तो कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच का एनर्जी गैप बढ़ता है कि घटता है? सर घटता है। वेरी गुड बेटा, बिल्कुल सही, घटेगा ऑब्वियसली यार, वो नए लेवल नहीं तैयार हो जाते हैं जैसे आप पेंटावेलेंट इंप्योरिटी मिलाओगे। कहाँ गया, ये आ गया, ले डोनर लेवल तैयार हो जाएगा। अगर ये ना होता तो क्या होता, ऊपर से लेके नीचे तक होता, बट ये आ गया तो गैप तो थोड़ा ही सा रह गया। कितना रहता है, 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के समथिंग। ये देखो 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के पास रहता है, नहीं तो 1.1 से लेके 3.1 तक पढ़ा था ना अपन ने। यस सर। तो यस, तो आंसर Yes, है sir. घटता है, बिल्कुल सही, करेक्ट आंसर है डिक्रीज हो जाएगा एनर्जी गैप। चलो दूसरा क्वेश्चन पढ़ो एरिना। How does the energy gap in intrinsic semiconductor varies on introducing a trivalent impurity in it? बताइए, ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी मिलाने पर एनर्जी गैप सेमीकंडक्टर का क्या हो जाता है, किस तरीके से बदलता है? बोलो, बढ़ता है कि घटता है ट्राइवेलेंट मिलाने पर? Sir, बढ़ता है. बढ़ेगा। हे भगवान, क्या कर रही हो श्रुति? Pentavalent और trivalent तो सेम है सर, तो घटेगा अरे सर. बेटा, दोनों में ही सेम होता है, दोनों में ही घटता है। बस ये होता है कि पेंटावेलेंट मिलाने पर डोनर लेवल के पास सरक जाता है, ऊपर डोनर लेवल बन जाता है, और ये ट्राइवेलेंट मिलाने पर ये एक्सेप्टर एटम का यहाँ पर बन जाता है, एक्सेप्टर एनर्जी बैंड। तो तब भी तो घट गया ना, पहले यहाँ से यहाँ तक था, अब यहाँ से यहाँ तक का गैप है। समझ में आया कि नहीं आया? Yes, sir. पहले पूरा था यहाँ से लेके यहाँ तक, अब तो इतना ही बचा ना, ये लेके यहाँ तक। Yes, sir. क्लियर कि नॉट क्लियर? Clear, sir. अरीना बोलो बेटा, नहीं आया Yes, समझ में? yes. सर आ गया समझ में। ओके, तो इस तरीके से इसमें भी डिक्रीज होता है। इम्प्योरिटी मिलाते ही अपन डिक्रीज करने को है ना, अपन को फायदा लेना है ना एनर्जी लेवल को कम करने का। पहला आंसर देखो, एनर्जी गैप डिक्रीजेस, दूसरा आंसर एनर्जी गैप डिक्रीजेस, थर्ड आंसर whose drift velocity is greater, होल्स और इलेक्ट्रॉन्स। बताओ भैया, ड्रिफ्ट वेलोसिटी किसकी ज्यादा बड़ी होती है, होल्स की या इलेक्ट्रॉन्स की? दिमाग लगाओ। सर इलेक्ट्रॉन्स। एग्जैक्टली क्योंकि होल्स जो होते हैं बनते तो बेचारे लैटिस ही में हैं, इलेक्ट्रॉन तो छोड़ के भाग जाते हैं, और होल्स तो बेचारे कहाँ बनते हैं, लैटिस के अंदर बनते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन तो फुल्ली फ्री हो जाते हैं। तो आंसर, इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज्यादा होती है। आंसर, द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन दैट ऑफ होल्स। बच्चों कॉपी में लिख लो, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ होल। बनेगा नहीं बनेगा? बन जाएगा सर। चलो फोर्थ क्वेश्चन Yes, पढ़ो sir. बेटा। On increasing the reverse bias in PN junction diode, how does the width of depletion layer vary? बताओ, अगर रिवर्स बाइसिंग बढ़ाओगे तो डिप्लेशन लेयर के क्या हाल होंगे, बड़ी हो जाएगी कि छोटी हो जाएगी? सर बड़ी हो जाएगी। बिल्कुल सही, वेरी गुड, क्योंकि रिवर्स बाइसिंग लगाने पे सारे इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव निगेटिव वाला खींच लेगा और सारे इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव वाला खींच लेगा।
तो पूरा का पूरा मोबाइल चार्ज कैरियर अंदर चले जाएंगे, बाहर केवल बचेगा क्या, कचड़ा इमोबाइल आयन जो बिना किसी काम के हैं। हाँ या ना? हाँ सर। हाँ समझ में आया कि बना के दिखाऊं? नहीं सर, आ गया समझ में। ये देखो बनाया तो था मैंने। चलो याद दिला देता हूं कि जैसे कि आप से लगाते हो अपने पास रिवर्स 22, तो देखो ये पूरे के पूरे होल जो होंगे पीछे की तरफ चले जाएंगे और पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन इधर पॉजिटिव की तरफ चले जाएंगे, तो यहाँ पे केवल इमोबाइल आयन बचेंगे और पूरी डिफ्लेक्शन लेयर फैल जाती थी। याद आया आपकी, नहीं याद आया? यस सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इन विच बाइस, एक मिनट, हो गया ना ये? हाँ हो गया। चलो फिफ्थ पढ़ो बेटा एरिना। In which bias the resistance of PN junction diode is very high? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, बताओ भाई किसका रेजिस्टेंस किस बात फॉरवर्ड। से? फॉरवर्ड में रेजिस्टेंस ज्यादा होता तो करंट कैसे फ्लो हो जाती? हे भगवान। रेजिस्टेंस पूछा, हाँ सर, सर वो होगा रिवर्स। हाँ यस सर, रिवर्स उसमें तो बाइस में करंट रेजिस्टेंस नहीं ज्यादा आता। होता है इसीलिए करंट फ्लो नहीं करता है, फॉरवर्ड बाइस का रेजिस्टेंस कम होता है बेटा। हाँ सर, मैंने करंट सर सुना, सॉरी सर। चलो चलो अगला क्वेश्चन, अगर आज का लेक्चर पढ़े हो तो व्हाट इज यूज ऑफ जेनर डायोड? जेनर डायोड का यूज बताओ। एक ही वोल्टेज पर कई सारी करंट, ज्यादा करंट नहीं मिल जाती थी? फिक्स वोल्टेज पर बहुत सारी करंट नहीं मिल जाती जेनर डायोड में? नहीं है सिलेबस में, बट पढ़ा तो दिया ना आज, छोटा सा ऐसे ही हल्का सा। अरे भूल गए बच्चों, क्या कर रहे हो बच्चों? देखो याद दिलाता हूँ। हाँ देखो, वोल्टेज फिक्स है, बोलो हाँ। हाँ सर। करंट की वैल्यू बढ़ती जा रही है कि नहीं बढ़ती जा रही है? यस सर। मतलब करंट चाहे कितनी भी हो, वोल्टेज आपको फिक्स मिलेगा कि नहीं मिलेगा? यस सर, Yes मिलेगा। sir. इसको अपन क्या बोलते हैं? वोल्टेज रेगुलेटर। क्या बोलते हैं? वोल्टेज Voltage रेगुलेटर। regulator. हाँ, तो जेनर डायोड का यूज क्या होगा? क्या लिखा है पढ़ो। इट इज यूज्ड एज, It is used as voltage regulator. बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एनर्जी गैप फॉर मेटल? मेटल में एनर्जी गैप कितना होता है? सर वो तो सर मिली होती है सर। मिली होती है, मतलब गैप होता है मतलब कि नहीं होता? नहीं होता सर नहीं क्या? होता। नहीं होने को मैथ्स में बोलते हैं जीरो। तो आंसर, मेटल में एनर्जी गैप कितना होता है? जीरो। दिखा? यस सर। यस सर, दिख गया। चलो ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्लीट हो गई है। ठीक है ना, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स हमारी कंप्लीट हो गई है। तो चलो एक क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। फोटो डायोड इज यूज्ड एज, फोटो डायोड का यूज किसमें किया जाता है? यूज्ड एज टू एमिट लाइट या टू डिटेक्ट लाइट? चलो मैंने दो ऑप्शंस दे दिए, टू एमिट लाइट या टू डिटेक्ट लाइट। सर, एमिट लाइट। फिर एलईडी क्या करेगी बेटा? कितना भूलते हो बच्चों, फोटो डायोड लाइट एमिट नहीं करता है, फोटो डायोड लाइट को डिटेक्ट करता है, वो लाइट लेता है। चलो देखो भूल गए। फोटो डायोड दिखाता हूं, ये एलईडी है, एलईडी का सिंबल देखो, इसमें से लाइट बाहर की तरफ निकल रही है, बोलो हाँ। हाँ सर। तो ये नाम ही है लाइट एमिटिंग डायोड, तो वो लाइट को एमिट करेगा। और फोटो डायोड का सिंबल देखना, ये देखो सर तो एलईडी में भी तो सर फोटो डायोड होता है ना? नहीं, एलईडी अलग है, फोटो डायोड बिल्कुल अलग है। फोटो डायोड लाइट को सेंस करता है, लाइट को डिटेक्ट करता है, एलईडी लाइट को फेंकती है, फोटो डायोड लाइट को लेता है, सोलर सेल लाइट को लेता है। ओके सर। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ सर, आ गया अब। हाँ तो बताओ आंसर क्या होगा उसका? फोटो डायोड इज यूज एज, डिटेक्ट, डिटेक्ट लाइट। हाँ डिटेक्ट लाइट, एंड लाइट एमिटिंग डायोड इज यूज्ड इन एमिटिंग द लाइट या लाइट एमिशन। समझ में आया? यस सर।
10th का आंसर, टू डिटेक्ट लाइट एंड टू लाइट एमिशन। ठीक है, चलो Yes, Yes. sir. ओके, कोई दिक्कत बच्चों? No, sir.